Hello friends, today I am favorite recipe, that is pseudo egg smoked veg biryani. I am very excited to share this recipe with all of my friends who are vegetarian but still they like to eat or taste the egg biryani. So this is my chance to show you my recipe. Bake eggs, for that I have my homemade paneer, that is 400 grams, 4 boiled eggs. I am going to mix these. So I am taking 1/3 part to make the outer of the egg, 1/4 of the part of paneer to make the inner, the egg yolk. 3/4 part of my grated paneer and the 4 medium sized potatoes in a mixing bowl. This is my all purpose flour. I am start with 4 tablespoons of all purpose flour. This is arrowroot, putting 2 tablespoons of arrowroot. Now I am using my hands to mix all the things together. Now we have to knead this dough very smooth. Take 2 or 3 minutes to mix each and everything all together. Mix for egg outer is ready. Now it's turn to make egg yolk. So this is our 1/4 of the grated paneer. Okay, in this I am going to put 1/8 teaspoon of turmeric to give the color of egg yolk. Now I am going to put black salt to give the flavor of actual egg. It's about 1/4 teaspoon, and I am putting 1 tablespoon of oil to give a good texture and smoothness. Mixture of our egg yolk is also ready. Now we have to divide this mixture in around 7 to 8 small balls. So now we are going to make the outer cover of the egg. Mixture in my hand and making a cavity to put our egg yolk. Slowly we have to cover this egg yolk. So this is our 1 egg ready. I know that is a lengthy, time consuming process, but believe me, this is really amazing, and the end result, no one can say that these are real egg or of fake eggs. Moreover, the nutritional value of these eggs, these pseudo fake eggs, are equal to the real eggs. The nutrition value is same, because paneer is also a rich source of protein, and real eggs are also a rich source of protein. So now our eggs are ready. Next step, we have to coat these eggs with all-purpose flour. So I am taking flour in this plate. I am taking one of my egg and rolling it in this all-purpose flour. I roll all my eggs in all-purpose flour. Now it's time to keep these eggs refrigerated for 10 to 15 minutes to make sure that these eggs will not break down in the oil. So I am going to keep these eggs in the fridge. Now friends, I have to do one more important step, that is soaking of the rice. For biryani, we should at least soak our rice for half an hour. Here I am taking 2 cups of basmati rice, and I am going to soak them in the water. Meanwhile, I will do other things. So I keep this my soaked rice. So friends, now I am going to make scrambled egg for my veg biryani. For that, I have taken this tofu. This is farm tofu, 250 grams. I will crumble it
by my hands in small pieces. My gas and putting 1 tablespoon and a half of butter in my pan. मैं वेट कर रही हूँ कि मेरा बटर मेल्ट हो, and butter will not burn. I will put a teaspoon of oil also. That is turmeric. I am putting that. A bit of red chili powder, lal mirch powder. Give a good flavor of real eggs. थोड़ा सा काला नमक अभी डाल रही हूँ, थोड़ा सा. These are dill leaves. क्रंची सा फ्लेवर आता है, तो मैं अपने स्क्रम्बल्ड एग्स में थोड़ा सा इसका यूज़ भी कर रही हूँ. इसका फ्लेवर एनहेंस होता है. मैं इसमें थोड़ा सा सोया मिल्क डाल रही हूँ टू गिव अ गुड टेक्सचर एंड स्मूथनेस. हम इसमें थोड़ा सा बिरयानी मसाला भी डालेंगे. ये मेरे होममेड बिरयानी मसाला है. थोड़ा सा काला नमक, और पहले हमने थोड़ा डाला था, थोड़ा अब. Our scrambled egg is ready, so I will take this scrambled egg in a plate. अब हम अपना बिरयानी का मसाला रेडी कर लेते हैं. For that I put my pot on the gas. बिरयानी है तो कोई भी बिरयानी बिना घी के नहीं पूरी होती है. So I am putting tablespoon of घी. ये मैं इस पोट में शाही जीरा डाली है, हाफ टेबल स्पून के करीब. थोड़ी सी ब्लैक पेपर, काली मिर्च, 1 or 2 तेज पत्ता. इन सब चीज़ों को डालने के बाद मैं इसमें और खड़े मसालों का यूज़ नहीं कर रही हूँ. गोइंग टू पुट मेरा होममेड बिरयानी मसाला, जिसमें सारे खड़े मसाले हैं. जावित्री, स्टार अनीस, तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची. तो मैं उस मसाले को यूज़ कर रही हूँ. जब बिरयानी खाएं हमारे मुंह में पूरे खड़े मसाले आए. सो आई प्रेफर टू पुट मसाला, बिरयानी मसाला, रादर देन पुटिंग होल स्पाइसी. मैं अपनी फ्रेश मेथी लीव्स डाल रही हूँ. अगर आपके पास फ्रेश मेथी लीव्स नहीं है तो आप कसूरी मेथी का भी यूज़ कर सकते हैं. तो दिस इज़ अबाउट 3 to 4 tablespoons ऑफ मेथी लीव्स. मैं इसमें अपने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर जो मैंने कट एंड चॉप करके रखे हैं वो डाल रही हूँ. इसका फ्लेम इंक्रीज़ कर रही हूँ. साथ ही मैं 1.5 टेबलस्पून जिंजर, गार्लिक एंड चिली पेस्ट डाल रही हूँ. सबसे पहले हम डालते हैं थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर, सूखा धनिया 1 टेबलस्पून भरती. और अब हम डाल रहे हैं अपनी लाल मिर्च. आप अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालिए, कम करते हैं तो कम डालिए. पर्सनली मुझे थोड़ी स्पाइसी बिरयानी पसंद है, तो मैं 1/2 टीस्पून मैंने डाला. सभी मसालों को अच्छे से रेडी हो रहा है. तो हम अपनी दही तैयार कर लेते हैं. ये मैंने ली है 3/4 कप ऑफ दही. में मैं डाल रही हूँ केसरी कलर, जस्ट 1/4 टेबलस्पून. इट विल गिव अ वेरी नाइस कलर टू अवर बिरयानी. बहुत खूबसूरत कलर आता है हमारी बिरयानी को. कह रही हूँ कि कलर को अच्छे से मिक्स करिए ताकि कलर इवनली पूरी दही के अंदर मिक्स हो जाए. अब मैं इसमें डाल रही हूँ अपने अदरक के जूलियंस, जिंजर जूलियंस, ग्रीन चिलीज, ऑनियंस हैं जो किसी भी बिरयानी की जान होते हैं. हैंडफुल ऑफ ब्राउन ऑनियंस अपने बिरयानी मिक्स में.
जो हम बना रहे हैं उसमें मैंने डाल दिया है और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें बिरयानी मसाला डाल रहे हैं, वो हम डाल रहे हैं आधा चम्मच के करीब। 4 टीस्पून हम गरम मसाला डाल रहे हैं। ये डाल रहे हैं हमारा दही, अब हम इसमें थोड़ा सा हरी इलायची का पाउडर डाल रहे हैं, हमारे कटे हुए धनिया, पुदीना के पत्ते। पुदीना के पत्ते अप्रोक्सीमेटली 2 स्ट्रिंग्स हैं पुदीना की, 8 से 10 पत्ते, और एक इसे अच्छा सा मिक्स दे देंगे। ये हमारा एग करी का मसाला और मैरिनेट मसाला रेडी है। अंडों को भी टेस्ट करते हुए 10 से 15 मिनट हो गए। दैट आई विल कीप ऑन द लो फ्लेम। अब हमने अपने ऑयल को गरम किया है और बिल्कुल स्लो हीट पे, और हमारे एग्स को भी 15 मिनट्स हो गए हैं रेस्ट करते हैं। आई विल स्टार्ट विथ पुटिंग जस्ट 1 एग। मैं पहले एक एग से देखूंगी कि मेरा एग फटता तो नहीं है। हिलाना नहीं है, बस देखना है कि ये अंडे फटे नहीं। अभी मेरा पहला अंडा तो बहुत अच्छे से हो रहा है, फटा नहीं है। बिल्कुल स्लो हीट पे इनको अंडों को निकालते हैं और अपने पेपर पे रखते हैं ताकि हमारा जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सब ऑब्जर्व हो जाए। अब हमने अपने जो बिरयानी राइस जो आधे घंटे के लिए भिगो के रखे थे, अब उसको हम बॉईल करते हैं। राइस का एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन आउट कर दिया है, निकाल दिया है। वेट करते हैं जब तक ये बॉईल होता है, एक फुल बॉईल आना चाहिए। फिर हम इसमें अपना नमक एंड द अदर स्पाइसेस, हम अपने एग्स को भी सोटे कर लेते हैं। उसके लिए हमने अपने पैन में थोड़ा सा ऑयल, 1 टीस्पून, टू रोस्ट द आवर स्पाइसेस। सो हियर आर द स्पाइसेस। आई एम पुटिंग 1/4 टीस्पून ऑफ हल्दी पाउडर, turmeric powder, 1/4 teaspoon of our biryani masala and 1/4 teaspoon of our red chili powder। ये सारे अंडों को एक एक करके इसमें डाल देते हैं ताकि एक अच्छी सी कोटिंग हो जाए हमारे एग्स के ऊपर। पे अच्छी सी कोटिंग हो गई है। हमारा पानी गर्म हो रहा है, इसको हम वापस से यहाँ पे रखते हैं। हमारा पानी गर्म हो चुका है, फिर बॉयल आ रहा है, तो अपना अराउंड 1.5 टीस्पून, हाफ टीस्पून हमारा शाही जीरा, साथ में हम डालते हैं थोड़ा सा केवड़ा, डालते हैं हमारी बिरयानी में अच्छी महक आए। हमने 2 कप चावल लिए थे, तो हमने यहाँ पे 8 कप पानी उबाला है। इस कप से मैंने मापा था, ये 2 कप मेरे चावल थे और इसी कप से 8 कप मैंने पानी लिया है। और जब हम नमक डालते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो इस पानी में नमक है ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं। पानी जैसे हमारा सी वाटर होता है, उसका टेस्ट बिल्कुल सी वाटर की जैसा होता है। अब हमने इसमें अपने चावल डाल दिए हैं, पानी में अच्छा बॉयल आ गया था, चावल डाल दिए हैं। अब हमें अपने चावलों को बहुत हिलाना नहीं है। जब चावल अपने आप ऊपर आ जाएंगे, हमें तब तक वेट करना है, इंतज़ार करना है।
हमने जो अपना बिरयानी का मैरिनेट किया है उसका गैस भी ऑन करते हैं और उसमें से अपना आधा अंडा मसाला हम एक बाउल में डिश आउट कर लेते हैं। अब हम अपना कोयला रेडी करते हैं। दिस इज स्मोक बिरयानी, सो उसके लिए हमें कोयले को रेडी करना होगा। हाँ। अब हमारे चावल भी अपने आप ऊपर आना शुरू हो गए हैं। तो अभी आप देखिए चावल का दाना हाथ में आने पे होने लगा है, तो हमारे चावल अब तैयार हैं। अब हम इसको अपने मैरिनेट वाले बाउल में डालना शुरू करें। साथ में खड़े मसाले आ रहे हैं तो उसको आने दें। उससे हम अपने चावलों को, जो हमारी पहली लेयर है वो हम बना रहे हैं। जो मसाला है हमने उसके ऊपर एक लेयर अपने चावल की बिछा दी है। अपना बचा हुआ बिरयानी मसाला से दूसरी लेयर बनाते हैं। ये हमने बचा हुआ अपना मैरिनेट अंडा मसाला जो हमने बनाया था उसको हम अपने पहले लेयर, जो चावल के पहले लेयर है उसके ऊपर बिछा रहे हैं। अपने अंडों को एक एक करके इसके ऊपर रख रही हूँ। क्रम्बल एग्स बनाए थे, मैं थोड़े से उसको भी डाल रही हूँ। हमारे थोड़े से ब्राउन ऑनियंस, थोड़ी सी मिंट लीव्स। अब यहाँ पे हम अपना लगभग 1 टीस्पून हमने बिरयानी मसाला डाला है। थोड़ा सा इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून हम गरम मसाले का भी यूज़ करेंगे। बचे हुए राइस हैं, अब हम इसके ऊपर इसकी एक और लेयर रेडी करेंगे। सारे चावलों को डाल देना है। बचे हुए ब्राउन ऑनियंस की एक लेयर बनाएंगे। हरी मिर्च, बची हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा फिर से बिरयानी मसाला, और अब हम लेंगे अपना घी किनारों पे। ये 1 बड़ी चम्मच के लगभग हमने घी डाला है। ये हमने अपना केसर का दूध रेडी करके रखा था। 1 कप दूध को गर्म किया और उसमें थोड़े से केसर की फ्लिक्स डाली। कलर एक अच्छा टेस्ट देता है। तो अब हम इसको अब हम अपनी बिरयानी को एक स्मोकी फ्लेवर देने के लिए जो कोयला हम गरम कर रहे थे कटोरी में रखेंगे और इस पे हम 1 चम्मच भर के घी डालेंगे। हमने इसमें कोयला डाला है और इसको अब हम रखेंगे 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि इसमें अच्छे से कोयले का स्मोकी फ्लेवर आ जाए। बिरयानी का नाम भी है सूडो एग स्मोक्ड बिरयानी। हमें 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब हम अपना कोयला इसमें से निकालेंगे। अब बारी है अपनी बिरयानी को दम देने के लिए। मैं अपने पोट पे एक एल्युमिनियम फॉइल से इसको कवर कर इसको वापस से लगाती हूँ। यहाँ मेरे पास है थोड़ा सा आटा, गूंदा हुआ आटा, जिससे हम रोटी बनाते हैं। अब हमारा दम का प्रिपरेशन हो गया है। हमने इसे अच्छे से कवर कर और हम अब अपने सबसे छोटे वाले गैस पे हम इसको सबसे छोटे गैस पे और सबसे लो फ्लेम पे इसको 20 से 25 मिनट के लिए दम लगाने के लिए रखते हैं। 20-25 मिनट हो गए हैं अपनी बिरयानी को दम पे रखे हुए। इट्स टाइम टू ओपन द मैजिक। And it looks very yummy, very colorful, very delicious. So my dear friends, this is the end result of what we did, my pseudo egg smoked biryani. I am serving this biryani with mirchi salan.
Hi friends and my viewers, it's Mrs. Rafi. This is my recipe pseudo egg biryani. Hope you all like this, and I hope that you will try and attempt at your home. Your likes and sharing with your friends, family will definitely helps me a lot. So please share maximum with your friends and family. It means a lot to me. If you have some comments or some suggestion, feel free to give your suggestion in the comment box. Thank you.